Yeah, hello, this is Swati Joshi from Nirapat, and today we are going to speak about heart chakra. Heart chakra is also known as Anahat chakra. The age of development of the heart chakra is from 4 years to 7 years. The heart chakra starts developing from the age of 4 years till the age of 7 years. The element is air, planet is Venus, Shukra. The location of the heart chakra is in the chest, heart, cardiac place. And what is the task of the heart chakra now? What does heart chakra do? The formation of social identity and gender roles. Its needs and issues are initiative versus guilt and love versus rejection. The color of the heart chakra is green, and the Bija mantra for heart chakra is Yam. Mystery of love. The intimacy of love both reveals and integrates the shadow of rejection and acceptance. The heart chakra mainly consists of love for each other, love for oneself, and love for all the nature also. Being loved by another increases ourself. The confidence in ourself increases when we start loving other people, when we start loving the nature as well. We take better care of our bodies, keep our house clean, dare to reach further. It's like, I'll give an example. If you love your own house, आप जब आप अपने घर को ज़्यादा प्यार करते हो तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ मेरा घर बहुत अच्छा रहना चाहिए, तो आप ज़्यादा उसकी सफाई की तरफ ध्यान दोगे. यू विल डू मोर ब्यूटिफिकेशन ऑफ योर हाउस as well as when you love someone else, for example your kids you love, so you will take care of your health first, because if I am okay, I am there for my kids, that's what you think. So if we love someone else, we will take better care of our body. Love brings spiritual awakening as well, and the loss produces despair. When we start loving for the God and for the nature, our spiritual awakening starts, and the negative side of it is, and the loss produces despair. What about lost men? I'll be coming to that point. Now, balance and intimacy. It is the middle point in the 7 chakras, so balance is important. It's like when you see the chakras, there are 7 chakras which starts from this from here, from the root chakra to the Sahasrara chakra, and the heart comes perfectly in between. So it has its effects from the lower chakras as well as from the upper chakras. When the energy is not flowing properly from the lower chakra, the heart chakra gets blocked. Even likewise, when the energy is not flowing from the upper chakras, the heart chakras get blocked. So finding the equilibrium supports the basic issue of love and relationship. Without balance, without ourselves, it is difficult to achieve healthy and long relationship. If we don't have the balance in our nature, in our behavior, we will not have a healthy relationship with anyone in the world, be it with the spouse, be it with the parents, be it in the social circumstances. Anywhere will not have we can't maintain a balance unless and until we have a balance in our chakras as well. In order to have intimacy, we must have sense of self. मैं खुद एक अच्छी इंसान हूँ या मैं खुद एक अच्छा इंसान हूँ, जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आती है, आप दूसरों की तरफ ज़्यादा प्रेम भी व्यक्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि इक्विलिब्रियम ही आप मेंटेन नहीं कर पाते हो. तो आपको पहले खुद में विश्वास होना चाहिए, उसके बाद ही आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हो. Most common block in the chakra is the absence of self-love. How can we have intimacy with others if we are distanced from ourselves? जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मुझे अगर खुद पर ही भरोसा नहीं है तो मैं दूसरों पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? If I don't love my body, how will I love someone else? How will I love something beautiful? How will I like something beautiful? Yeah. So that is the blockage that we have in the heart chakra, is not loving ourselves. That is the self.
Our relationship with others reflect our relationship within ourselves. It is the way we behave with others that reflects on what we are thinking, the way we behave with ourselves as well. For example, जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा हम लोग किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि कुछ हो रहा है, ओके ठीक है, टेकन फॉर ग्रांटेड, या चलता है, तो हम लोग हमारे खुद के शरीर की तरफ भी वैसे ही उतना ही कम ध्यान देंगे. इट्स लाइक इफ़ यू हैव एन हेडेक, वी विल जस्ट इग्नोर इट, और वो फिर बढ़ता जाएगा नहीं, यू विल हैव सम डिजीज़, और उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाओगे. इट्स द वे यू बिहेव विथ अदर्स, इज़ द वे यू बिहेव विथ योर सेल्फ. इट शोज़ दैट सेल्फ लव इज़ द फाउंडेशन ऑफ लविंग अदर्स. जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करते, खुद को प्यार करना नहीं सीखते, तब तक आप दूसरों को प्यार नहीं दे सकते. सेल्फ रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस. Self examination gives birth to a new integrated self. This self is not bound by the past but energized by the will beneath it and headed towards future. जब हम लोग को खुद के लिए हम लोग एग्जामिन करते हैं, सेल्फ एग्जामिन करते हैं, तो पास में हम लोग ने क्या किया उस पर ज़्यादा ड्वेल नहीं करना है, हमें आगे क्या करना है उस पर ज़्यादा ड्वेल करना है, तो वो ज़्यादा सोचना है हमें. यस प्रॉब्लम. क्योंकि आगे जाकर हमें क्या करना है, अगर वो हम अभी नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे हम लोग. सेल्फ एग्जामिनेशन इज एसेंशियल टू एस्टैब्लिश बैलेंस, दैट इज सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ द हार्ट चक्रा. खुद को सेल्फ एग्जामिन करते रहो कि मैं दूसरों के साथ कैसे बिहेव करता हूँ या करती हूँ, या मेरा इस सिचुएशन में हाउ विल आई रिएक्ट टू अदर्स, कि हाउ विल आई रिएक्ट टू दिस सिचुएशन, और दिस इफ आई एम इन दिस सिचुएशन, इफ अदर पीपल रिएक्ट टू मी इन सच अ वे, हाउ विल आई फील. So you have to maintain a equilibrium, a balance in your emotions as well as in your health, and the way you behave with yourself and with the society as well. Mind and body. Feelings are reconnected with mental images. Impulses are integrated with belief systems. हमारी जो फीलिंग्स है, जैसे हमें महसूस होता है, वो कहाँ से कनेक्ट होता है, मेंटल इमेजेस है. आप जब पिक्चर देखते हो टीवी पर, कभी कभी आपको हंसी आती है, कभी कभी आपको रोना आता है, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, कोई कैरेक्टर के लिए आपको बहुत ही गुस्सा आ जाता है, ज़्यादा गुस्सा आता है. आप इमेज देखते हो, जो इमेज है उसका जो ऑरा है उससे आपके हार्ट चक्रा पर अटैक ये होता है. जो इमेज है वो आपको दिखती है, माइंड से मैसेज मिलता है हार्ट चक्रा पर, और वैसे आपको फीलिंग्स डेवलप होते हैं. द सेम वे the feelings that we have should be reconnected with the mind, and we should have a balance with the feelings as well, with the images as well. Sensation is connected with the meaning. This is the work of self reflection, allowing the mind to behold or experience in the body. We should allow our mind to experience each and every emotion in the body without the excess of that emotion. कोई भी इमोशन ज़्यादा या कम अगर होगी तो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है. आप बहुत ही ज़्यादा हंसोगे तो भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, या आप हंसोगे ही नहीं तो भी अच्छा नहीं है आपकी हेल्थ के लिए. सो द इमोशंस, यू शुड हैव इमोशंस, बट इट शुड बी बैलेंस. इट शुड नॉट बी इन एक्सेस एज वेल एज इट शुड नॉट बी लेस ऑल्सो. If work on our lower chakras has brought us fully into our body, we are now ready to integrate that awareness into higher levels of complexity and understanding. इसका मतलब ये है कि नीचे की हमारे जो रूट चक्रा है, स्वादिष्ठान चक्रा है, मणिपुर चक्रा है, वो अगर अच्छी तरह से ऑसिलेट हो रहे हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो बैलेंस में है, तो हमारा हार्ट चक्रा भी अपने आप बैलेंस में आ जाता है, बिकॉज इट इज़ द मिडिल पॉइंट. और ये अगर इसमें लोअर चक्रास में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे हार्ट चक्रा में अपने आप प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लॉकेजेस हो जाते हैं.
हाँ, क्योंकि हमें पहले अपने लोअर चक्रास को प्यूरिफाई करना है, उसके बाद ऊपर 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 हमें 7 चक्रा तक आना है, क्योंकि थर्ड हार्ट चक्रा तक हमारे बॉडी से रिलेटेड है। हार्ट चक्रा के बाद जब हम यहाँ पर थ्रोट चक्रा पर आती है तो ये सारा हमारा स्पिरिचुअली रिलेटेड है, ये ज़्यादा बॉडी से रिलेटेड नहीं है, स्पिरिचुअल रिलेशन ज़्यादा है इसमें। सो दिस इज़ मोर रिलेटेड टू द बॉडी, मोर रिलेटेड टू द फीलिंग्स, मोर रिलेटेड टू द लाइफ दैट वी लीड अबाउट. This is the work of self-reflection, allowing the mind to behold our experience in our body. Relationship with others. आप दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हो? The way you behave with others. Lack of balance is experienced as pressure, frustration and stress, leading to resentment and erosion of openness and goodwill. अगर आपके लोअर चक्रा में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो। जब आपका हार्ट चक्र बैलेंस में नहीं है तो आपको ज़्यादा प्रेशर लगेगा, काम का प्रेशर रहने दो या कोई चीज़ का प्रेशर है तो वो प्रेशर है, प्रेशर लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत आता है हमें, छोटी छोटी बात पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेन में चढ़ गए, बैठने के लिए जगह नहीं मिली, फ्रस्ट्रेशन आ गया, अरे यार बैठने के लिए जगह नहीं मिली। आप कहीं जाते हो, लाइन बहुत लंबी है, फ्रस्ट्रेशन आ गया, अरे लाइन बहुत लंबी है। या आप जिस लाइन में हो वो लाइन बहुत स्लो चल रही है, दूसरी लाइन फास्ट चल रही है, फ्रस्ट्रेशन आ गया। सो ऑल दिस थिंग्स, एंड उससे स्ट्रेस आता है फ्रस्ट्रेशन से आपको, एंड स्ट्रेस लीड्स, ऑल दिस थिंग्स लीड्स टू रिसेंटमेंट, कि नहीं मुझे नहीं करना है ये चीज़, रिसेंट करने लगते हो आप हर एक चीज़ को, नहीं आई डोंट वांट टू डू दिस बिकॉज इफ आई गो देयर this is going to happen 100%. You have made up your mind because you have experienced something, and for that you have made up your mind. It is not that every time if you do the same thing, you will get the same results as well, but no, you have made up your mind. There is no balance in the heart chakra and it leads to resentment. और फिर आप ओपन नहीं होते हो न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने के लिए. When you block your heart chakra, you are not open to any new ideas that the person are telling you so that you can incorporate it. You block yourself as well. If the heart chakra is blocked, the arms will be blocked. अब जैसे ना बहुत लोग ऐसे ही चलते हैं, या they always stand like that, या they are like this, they are like this, fiddling with the hand and all these things. The arms are blocked. This is the reason, because your heart chakra is blocked. You don't have a free movement of your arm. It's like आप चलते ही भी हो ना तो आप ऐसे चलोगे या आप ऐसे चलोगे. हम लोग तो नॉर्मली ऐसे चलते हैं. You have a free movement of the hand which is not there when your heart chakra is blocked. You can see the people are very rigid. ये ऐसे एक स्टिफनेस आ जाता है बॉडी में जब हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है आपका तब. If the heart chakra is blocked, the arms will be blocked, which will result in refusal to reach out, fear of surrender, etc. जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं गिरने वाले हो, कोई संभालने वाला आपको है भी, तो भी यू विल नॉट स्ट्रेच आउट योर आर्म टू दैट पर्सन बिकॉज यू विल फील दैट अरे अगर उसने मुझे नहीं पकड़ा तो, दैट रिफ्यूजल, आप सरेंडर नहीं होते हो किसी को ठीक से, पूरी तरह से सरेंडर नहीं हो पाते हो आप. The soul likes container which allows energy to build, whereas the spirit resents it. हमारा जो सोल है उसको एक ढांचे में चलने की आदत है, पर हमारे स्पिरिट को वो अच्छा नहीं लगता है कि नहीं, you have to come out of the box and do something different. It's like the soul likes to stay in the same boundaries, in the same cocoon type की, नहीं ये पूरा मुझे अच्छा है ये माहौल, I am very used to this situation, so I am more comfortable in this. And what the spirit says that come out of it, there are new challenges for you, you will experience something new, so come out of it. So we have this twin fiddle in our heart as well, कि मैं ये काम करूँ या वो काम करूँ, कि नहीं मुझे तो ये काम करना है पर मैं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा या अच्छा रहेगा, लोग क्या कहेंगे, forget it, go with the flow. When our partner is pulling away, the soul becomes insecure. Hence, we cling to our partner. This the spirit does not like. जैसे किसी की ब्रेकअप हो जाता है तो you cling to that person कि नहीं क्यों ब्रेकअप किया, I am ready to compromise. आप कुछ भी compromise करने के तैयार हो जाते हो, which is not necessary at all.
you should just leave it there and go along with your life. Grief is the demon of the heart. Grief sits on the heart chakra like a stone. When our heart is heavy with grief, it is hard to open, even harder to breathe. We become numb, hard, cold, rigid and distant. बहुत ही ग्रीफ है, कुछ ऐसी आपकी ज़िंदगी में घटना हो गई है, यू आर इन अ शॉक, बहुत ही आपको बुरा लग रहा है, वो ग्रीफ अगर आप निकाल नहीं पाओगे तो ओपननेस नहीं होगा, यू विल जस्ट बी अ ज़ोंबी एंड नथिंग एल्स. You will be numb, you will be a very hard person to crack down, you will be cold towards other people's feeling as well. किसी के फीलिंग की हमें कोई कदर ही नहीं रह जाएगी. अगर आप ग्रीफ में भी होगे, अपने ही धुन में होगे, अरे नहीं मुझे तो ये है, नहीं यार मेरा तो बहुत दिमाग ख़राब है, मैं हर समय बीमार ही रहता हूँ या बीमारी रहती हूँ, पता नहीं क्या होगा आगे, पता नहीं भगवान ने मुझे ऐसे क्यों बनाया है, मेरे ही साथ ऐसे क्यों हो रहा है, तो मुझे हर समय बीमारी, हर 2 दिन में बीमार गिरता हूँ मैं या गिरती हूँ. अरे दूसरे लोग जो अच्छे हैं वो आपको कुछ अच्छा बोल रहे हैं, यू नेवर लिसन टू देम बिकॉज यू dwell in yourself only, which is not good for the heart chakra. When it is expressed in the form of tears, to express the heart lightens. आप उससे बाहर आ जाओ, किसी से बात करो कि ये क्यों हो रहा है, रो दो आप. कोई अगर if you have a life shattering experience, cry it out, express your feelings, because it helps the heart chakra to come out of that grief situation as well. इसमें एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ओवर प्रोटेक्शन ऑफ किड्स बाय वन और बोथ पेरेंट. नाउअडेज वी हैव ओनली वन चाइल्ड, तो पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स या कोई भी एक पेरेंट बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है अपने बच्चे के ऊपर. फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे को जितनी भूख है उतना ही बच्चा खाना खाएगा, तो मोस्टली मम्मीज़ लोग ज़्यादा क्या करती नहीं, और एक चपाती खा ले और एक पराठा खा ले, या अरे तेरी तो ये फेवरेट डिश बनाई है ना, तूने इतना सा ही खाना खाया है, थोड़ा सा और खा ले, प्लीज़ बेटा यू लव योर मम्मी ना, यू हैव टू ईट समथिंग मोर, जस्ट अ हैंड्सफुल मोर प्लीज़. हम लोग उसको इतनी ज़बरदस्ती कर देते हैं ना खाना खाने के लिए, और इमोशनल ब्लैकमेल कर देते हैं, एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर दैट पर्सनस हार्ट चक्रा. क्योंकि अदरवाइज वो कहता है कि अरे हाँ नहीं, मम्मी ने कहा है इफ़ आई डोंट ईट मम्मा विल थिंक दैट आई डोंट लव हर एनी मोर. तो वो एक बर्डन वो बच्चा अपने ऊपर ले लेता है, विच इज़ नॉट गुड एट हिज एज. हमें पता नहीं चलता है, हम लोग को ऐसे लगता है कि हमारे बच्चे ने बहुत खाना खाना चाहिए, अरे पर उसकी तबीयत तो देखो, वो अगर फूल कर मोटा हो जाएगा फिर उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाओगे कि नहीं, बच्चा ओबेस हो गया, उसको ओबेसिटी से कम लाना है, चलो जिम में जाओ, या अरे कितना मोटा हो गया, खा खा कर मोटा हो गया, इतना खाना मत खाओ. नहीं, पहले से ही जितना खाना उसको चाहिए उतना ही दे दो, पौष्टिक खाना दे दो, पर उतना ही दे दो जितना उसको हजम हो जाए. आप इतना भी ज़्यादा प्यार मत जताओ उसके ऊपर कि वो खाना खा खा के इतना मोटा हो जाए, फिर आप डॉक्टर के पास जाओ और फिर वो पतला होने के लिए मेडिसिन दो, एक्सरसाइज करो, उसके डाइट के ऊपर कंट्रोल करो, एंड देन द चाइल्ड विल स्टार्ट हेटिंग यू. उसके दिमाग में तो ये एक ही बात बैठ जाती है कि पहले तो मम्मी मुझे अच्छा अच्छा खाना देती थी और कहती थी कि आप अगर इफ़ यू लव मी यू हैव टू ईट इट, सो अब मुझे मम्मा ये खाना नहीं दे रही है, इसका मतलब है मम्मा डजंट लव मी नाउ. दैट इज़ व्हाट द चाइल्ड थिंक्स, because we have told the child that if you eat this it seems that you love your mother or your father, whatever the case may be. Now when the child has overgrown, is obese, and when you start giving the child healthy food, the child will start thinking that now my parents are not giving me the food that I carve for, so they don't love me anymore, and the child will go into a shell. And you will think that why the child is going into a shell when we love the child so much. It's just because of your behavior this has happened and nothing else. Even when we think that our partner is going to leave us, एक एग्जाम्पल देती हूँ. एक 2-3 साल हो गए थे शादी को, एक कपल आए थे मेरे पास कंसल्टिंग के लिए. तो वो लड़की को बहुत ही इनसिक्योरिटी थी क्योंकि उसके लोअर चक्रास में प्रॉब्लम था, बहुत इनसिक्योरिटी थी उसको, लड़की को. उसको लगता था कि नहीं मेरा हस्बैंड मुझे छोड़कर चला जाएगा.
कि मैं अगर ठीक से नहीं रहूँगी, घर में ज़्यादा काम नहीं करूँगी, या आई हैव टू बी अ परफेक्ट हाउस वाइफ, मुझे घर भी अच्छी तरह से देखना है, जॉब भी अच्छी तरह से देखना है, एंड आई हैव टू बी परफेक्ट 100% सब में लाना है मुझे। अगर मैं ये काम नहीं कर पाती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर चले जाएंगे। शी हैड दैट इनसिक्योरिटी फीलिंग व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग विथ हर। और मुझे ऐसे पता चला कि उसके हस्बैंड उसको काम में मदद करने के लिए तैयार है, बट शी डजंट अलाउ इट। तो वो कहती कि अरे नहीं नहीं, मैं उनसे काम करवाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, कि मैं नहीं कर पाती इसलिए उनको काम करना पड़ता है, देन आई विल नॉट बी अ गुड हाउस वाइफ। सो देन अगर मुझे वो छोड़ के चले गए तो उसके साथ बात की, फिर मैंने हस्बैंड के साथ बात की। उनका कहना है कि वो इतना काम करती है, आई वॉन्ट हर टू रिलैक्स, दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू हेल्प हर विच शी इज़ नॉट अलाउिंग मी। कि ठीक है, घर का काम बांट के करते हैं, कि आप थोड़ा काम करो, मैं आपको हेल्प करता हूँ, तो वी गेट टाइम टू स्पेंड विथ ईच अदर विच वी आर नॉट गेटिंग नाउ, बिकॉज शी इज़ डूइंग ऑल द हाउस वर्क एज वेल एज द जॉब ऑल्सो। तो वो उनको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अगर हस्बैंड मदद करता है, स्पाउस मदद करता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे तंग आ गया है, आप कर नहीं पाते हो, वो आपको छोड़कर चला जाएगा। सो व्हेन आई स्पोक टू बोथ ऑफ देम, मैंने उनको ये बात समझाई, मैंने उनको खड़ा किया एक दूसरे के सामने और कहा कि अभी आप आंखें बंद करके एक दूसरे को रीच कर लो, ट्राई रीचिंग द अदर पर्सन विथ यू क्लोज योर आईज एंड ट्राई रीचिंग द अदर पर्सन। And like when I saw their reaction, the husband was with an open arm and the lady was like rigid, like I told you, the heart chakra was blocked, so she didn't even make a step forward towards her husband. तो फिर उनको काउंसलिंग किया, उनको पहले ग्राउंडिंग की, ये जो फोबिया था कि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर चले जाएंगे, तो ये निकाला। हस्बैंड को कहा कि यू हैव टू रीअश्योर हर, बिकॉज अभी इतने जल्दी तो ये फोबिया, ये मन का जो वहम है, वो तो जल्दी नहीं जाने वाला है। सो एवरी टाइम यू टेल हर दैट यू लव हर, यू अप्रिशिएट द वर्क शी इज़ डूइंग, एंड देन यू टेल हर इन सच ए वे दैट अगर वो आपको मदद करते हैं तो यू कैन स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद ईच अदर। वो क्वालिटी टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो उसके लिए यू ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम योर हस्बैंड व्हेन ही इज़ ऑफरिंग इट टू यू। तो दिस हैपन्स, दिस इट इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर वो मेरे पास आते ही नहीं थे या किसी काउंसलर के पास जाते ही नहीं थे, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़कर डिवोर्स तक आ जाता, बिकॉज दिस इज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। उसको लगता है कि ये बंदा छोड़ के जा रहा है, नॉट द वाइस वर्सा, बट ही इज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प हर। ये एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आगे जाकर इट मे गो टू डिवोर्स ऑल्सो इफ इट इज डजंट सॉल्व प्रॉपरली। Compassion and devotion. The ability to have compassion to others depend on our ability to be in touch with our yearnings and pains. अगर मुझे पता है कि मैं ये पेन से या गुजरी हूँ या गुजरा हूँ, तभी मैं दूसरों की तरफ देखकर कंपैशन दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। If you don't feel that pain in you, or you don't feel that the person is in pain, you can't show any compassion to the person at all. So you should have that yearning and that pain, that compassion in you. It does not mean that we have to fix the things. ऐसा नहीं कि आपको सारी चीज़ें फिक्स करनी है, no, you are not, it's not done. I mean, so many things are there that you can't fix it. Once again, an example. A couple had come to me for counseling. The lady had to do so much. She had to look after the kids. She was a housemaker. She had to look after the kids, look after the house, and she was helping her husband. They had a family business. She was helping her husband also in some of the ways. और उसका सिर्फ ये कहना था कि मैं इतना सारा काम करती हूँ, मेरे पति को तो मेरी कदर ही नहीं है। एंड वॉट शी यूज टू ऑलवेज से कि देखो इतना काम है, ये काम करती हूँ, वो काम करती हूँ, आई एम ऑलवेज बिजी एंड ऑल दिस थिंग। एंड देन द हस्बैंड यूज टू से what the hell do you why are you all telling me all these things, do you want me to leave my job and come and sit in the house and help you in the household works? उसका कहना वो नहीं था. She just wanted her husband to say that yes, I know you are working a lot for our house and I do appreciate it. Show her some compassion.
रिवर्स कर दो रोल। हस्बैंड बहुत ज़्यादा काम करके घर आते हैं, he is working for the family, and if you say that yes, I know I can't help you in the work that you are doing, but I will look after the family, I know you are working too much for us, आप ये जो कुछ भी कर रहे हो वो हमारे के लिए कर रहे हो, बच्चों के लिए कर रहे हो, तो उनको पता है कि आप उनके काम में मदद नहीं कर सकते हो, बट when you show the compassion to the other person will feel relief, will feel good, will feel joy. Yes, my spouse, my partner is there with me in each and every step of my life. It is not necessary to share the burden, it is not necessary that you will solve all the problems, but just show the compassion. और एक एग्जांपल देती हूँ, कोई बहुत बीमार है, आप उसके पास जाते हो कि वो तो बीमारी से तंग आ चुका बंदा है, वो जब आपसे कहता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, आपको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, यू आर हेल्दी, यू गो एंड रोम एवरीवेयर, नो वन इज़ देयर विथ मी, मैं तो घर में अकेली बैठा रहता हूँ या बैठी रहती हूँ, कोई किसी के पास टाइम ही नहीं है मेरे पास आने के लिए, बैठने के लिए, तब आप क्या कह सकते हो कि हाँ, मुझे पता है कि यू आर गोइंग अंडर टू मच ऑफ स्ट्रेस, बहुत पेन से जा रहे हो, एंड you have that courage to fight that stress, you have that courage to come out of this situation, and I know that you will come out of this situation, I am there with you, I am behind you. So आप इतना भी कुछ बोल दोगे ना, that is enough for that person, और वो जल्दी से ठीक हो जाएगा. Just showing the compassion, just showing that you are there for other people is enough for the person to come out of the grief or come out of the situation. Devotion is an act of selfless love and consciousness. It is called as bhakti also. May it be to a deity or a teacher. Through his act we experience joy. This is a egoless surrender. जो हम कंपैशन का बात कर रहे थे अभी, डिवोशन क्या होता है? भक्ति होती है. आप किसी भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ, या किसी जो आपके टीचर है, गुरु है, उनके स्टेप्स फॉलो करो आपके ज़िंदगी में, तो वो भी एक प्रकार का डिवोशन या भक्ति ही होती है, और आपको उससे आनंद मिलता है. द हार्ट चक्रा इज कार्विंग टू लव एंड हैप्पीनेस. दिस इज़ वॉट वी गेट when we spend some time meditating or spend some time with the person that we look on to. The devotion, जिससे भी डिवोशन आता है, आप भगवान के सामने बैठ जाओ, बहुत आनंद मिलता है आपको, तो आपका हार्ट चक्र एक पॉजिटिव वे में घूमने लगता है, पॉजिटिविटी आती है आपके हार्ट चक्र में. If the object of our worship leaves, falls from our grace or rejects us, we are devastated. To heal we must reconnect with self. कि हम लोग ने बहुत एक कोई आपका आइडल है, आप बहुत पूछते हो उस आइडल को, और बाद में पता चले कि यार ये तो बंदा करप्टेड है, या ये इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, तो आप डिवास्टेटेड हो जाते हो, यू गो ग्रीफ में चले जाते हो, आप शॉक में चले जाते हो, क्योंकि यू थॉट दैट पर्सन एज अ गॉड एंड दैट पर्सन हैज़ डिच यू. But you should remember that the person is also a human being and not a god. This situation may arise in your life anytime, and you have to come out of the situation. You will dwell, if you go on dwelling in your grief, you won't be able to come out of the situation. और ऐसे स्थिति में क्या होता है, आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर आ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, और एंड में आपको हार्ट अटैक आ जाता है, या फिर पैरालिसिस आ जाता है, या व्हेन ग्रीफ इज़ देयर, ग्रीफ लीड्स टू ट्यूबरकुलोसिस ऑल्सो. बहुत ग्रीफ है तो आपको टीबी भी हो जाती है, कैंसर भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ द ग्रीफ. आपने बोला नहीं है, आपके मन में जो है वो आपने व्यक्त नहीं किया है. सो दिस आर ऑल व्हेन यू कीप ऑन ग्रीविंग या यू डोंट ओपन अप टू अदर्स, along after so many years you may get this disease, and then you will think कि अरे देखो भगवान ने मुझे यही दे दिया. भगवान को क्यों कोस रहे हो? आपको जब पता है आपको इससे बाहर निकलना है, तब तो आप बाहर निकले नहीं, अब भगवान को कोस रहे हो आप.
When balance, our devotion work becomes even more deeper. अगर आपका हार्ट चक्रा बैलेंस में है और आप डिवोशन करते हो तो आपको और ज़्यादा उसमें डेप्थ में चले जाते हो आप. ट्रॉमास और अब्यूज़. अब ये चक्रा का ट्रॉमास और अब्यूज़ क्या है? देर इज़ नथिंग डिवास्टेटिंग दैन लैक ऑफ लव. आपको आपका ये मानना कि कोई आपसे प्यार ही नहीं करता. नो वन केयर्स फॉर यू. बी एट योर मदर, योर फादर, योर फ्रेंड्स, your spouse, your boyfriend, girlfriend, friends, anyone. If you think that no one loves you, you will go into a shell again. All abuses traumatize the heart chakra as they betray love. Because heart chakra का काम ही होता है प्यार बांटना. कोई भी अब्यूज़ आपके साथ हुआ है बचपन में या जवानी में, तो वो सारा इफेक्ट आपके हार्ट चक्र के ऊपर होता है. If a child is attended to superficially but not touched or given specific attention, then his love for others will be equally superficial. He suffers from lack of touch, shame, etc. एक एग्जाम्पल, आपने बच्चे को जो चाहिए वो दे दिया. PSP चाहिए ले लो, बड़ा टीवी चाहिए ले लो, मोबाइल चाहिए ले लो, ये गेम वो गेम. आपने इतना सारा पैसा उसके ऊपर खर्च कर दिया, उसको बहुत अच्छी स्कूल में भेजा, उसको जो चाहिए वो खाने के लिए दिया, घूमने के लिए लेकर गए, पर क्या आप उस बच्चे के साथ बैठकर आपने उससे पूछा कि कैसा है तू? डिड यू टच द चाइल्ड? डिड यू टेल द चाइल्ड ओके कम विथ मी, सिट विथ मी? नो, यू हैव नॉट डन दैट. आगे जाकर ऐसा बच्चा अपने बच्चों को या अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को इतना प्यार नहीं दे सकता है, क्योंकि उसे इतना ही पता होता है कि प्यार पैसे से खरीदा जाता है, विच इज़ नॉट करेक्ट. यू कांट परचेज लव विथ मनी, बट वॉट द चाइल्ड हैज सीन फ्रॉम his childhood is that my parents shower money, shower the material on me, and that is their way of showing the love, which is not correct way. तो टच होना चाहिए. आप कुछ अच्छी चीज़ करता है तो उसको कुछ गिफ्ट देने के बजाय उसके सर पर हाथ रखो, उसको कहो कि हाँ यस यू हैव डन अ वेरी नाइस थिंग बेटा, आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली प्राउड कि आप मेरे बेटे हो, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, आपने ये बहुत अच्छी चीज़ की है. वो जो टच है, वो जो फीलिंग है ना, वो बच्चे के लिए बहुत मायने रखती है. द चाइल्ड डजंट वांट एवरी टाइम टू बी गिफ्टेड. ये भी है ना, स्पेंड सम टाइम विद द चाइल्ड. से दैट ओके यू आर फ्री, अच्छा PSP रख दो, हम लोग घूमने चलते हैं पार्क में, लेकर जाओ उसको अपने साथ. स्पेंड सम क्वालिटी टाइम, टच योर चाइल्ड, उसको अपनी गोदी में बिठाओ, खिलाओ, खाना खिलाओ उसको, उसके साथ खाना खाओ. शेयरिंग होना चाहिए बच्चों में. अगर वो ही नहीं होता है तो दे वोंट नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लव, एंड व्हेन दे ग्रो अप दे विल गो इनटू अ शेल and they won't reciprocate the love that the other partner is giving them, nor will they be able to give full love to their children because they have never seen it in their house. They don't know कि अरे अच्छा प्यार ऐसा भी होता है. They don't know it. The abuse, like comparing the performance in a child as well as adult, is not good if done in excess. ये तो हम लोग 100% करते ही है घर में. अच्छा तुझे कितने मार्क्स मिले? ओ यू जस्ट गॉट इट 60%. अच्छा तेरे वो फ्रेंड को कितने मार्क्स मिले? 90%. देखो, अच्छा तुझे क्यों नहीं मिले? देख कितना होशियार है वो लड़का. तू ज़्यादा ना पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, टीवी देखता रहता है हर समय, खेलने में ज़्यादा है, वो देख कितनी पढ़ाई करता है. ठीक है, एक दो बार आप कहो, हेल्दी वे में कहो, बट यू नो एवरी टाइम वो जब भी बच्चा घर आता है या जब भी आप घर में रहते हो, आप उसको यही बोलते रहो तू तो नालायक है, बेकार है, तुझसे पढ़ाई होगी ही नहीं, तू तो कुछ पढ़ाई कर ही नहीं सकता, तेरे फ्रेंड्स देख कितने अच्छे नंबर लाते हैं, वो तो तेरा कोई भविष्य है ही नहीं. तो वो बच्चा तो पढ़ाई करेगा ही नहीं, उसको तो पता है भविष्य है नहीं, उसके माइंड में सबकॉन्शियस ब्रेन में चला जाएगा कि आई एम not worth any of and doing anything. Yeah, I mean he will not act only on it. वो कुछ I am good for nothing, तो वो वैसे ही रहेगा.
और फिर आप कहोगे कि मैं इतनी फैसिलिटीज़ देता हूँ तो मेरा बच्चा कुछ करता नहीं है। अरे आपने उसके मन में ये डर तो बिठा के रखा है ना कि यू आर गुड फॉर नथिंग, उससे तो बाहर लाओ आप। सेकेंड सिनेरियो बच्चों में नहीं, बड़ों में भी होता है कि आप कुछ करते हो और आप सफलता नहीं मिलती है तो लोग कहते रहते हैं, पीयर प्रेशर रहता है, अरे ये इसने तो इतने कमा लिया, इतना ये मिलता है, सैलरी मिलती है, तू तो इतनी मेहनत करता है, तुझे तो कुछ मिलता नहीं है, तू ये नहीं करता इसलिए तुझे ये नहीं मिलता, ये चीज़ नहीं मिलती है। घर में ताने मिलते रहते हैं कि वो देखो उनके घर में तो इतना बड़ा टीवी है, वो तो फॉरेन में टूर को जाते हैं, आपकी कमाई इतनी नहीं है तो हम लोग जा नहीं पाते हैं, विच इज़ नॉट गुड। फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वो आदमी, फ्रस्ट्रेशन में घर छोड़कर चला जाएगा, अटैक आ जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है इस आदमी का, और उसका हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है। एक्सेस ऑफ एनी इमोशंस इज नॉट गुड। द topmost in trauma is rejection. This is the fear that brings people into their deepest despair, darkest fear. Rejection, किसी को बोलना कि भाई मुझे हेल्प चाहिए या मुझे ये काम करना है, तो आप बोल ही नहीं पाते हो कि नहीं, अरे मुझे अगर ना बोल दिया तो, या किसी को कहना है आई लव यू, नहीं कह पाते हो आप, नहीं उसने ना बोल दिया तो, अरे कह कर तो देखो, ना बोल दिया तो ना, ठीक है, गो ऑन विथ योर लाइफ, बट आपने कहा ही नहीं और सारी ज़िंदगी गुजार ली, और बाद में अगर आपको पछतावा हुआ कि काश मैं तभी कह लेता या कह लेती, व्हाट्स द यूज़ नाउ। सो रिजेक्शन की डर से कुछ मांगने की या कुछ सोचने की, डोंट गो फॉर दैट कि नहीं मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। या आपको कोई मदद चाहिए, आपने किसी से मदद पूछी कि अच्छा तुझे ये अच्छा आता है ना, कैन यू टीच मी, कैन यू हेल्प मी इन दिस, आई एम अ लिटिल बिट स्टक अप इन माई जॉब, आई एम अ लिटिल बिट स्टक अप इन माई वर्क, कैन यू हेल्प मी आउट। द पर्सन विल टेल येस और नो और मे बी, बट गो पूछो तो सही बंदे को। अगर आप पूछोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको मदद मिल सकती है या नहीं। शायद मदद मिल भी सके, इट मे बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ, बट इफ यू डोंट आस्क इन द फियर ऑफ रिजेक्शन, it will be just sit on your heart like a stone, and you will be just thinking about it every time, अरे मैंने बोला होता तो, अरे मैंने बोला होता तो। इट्स लाइक अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। Fear of rejection is the main reason why we hold back our love. Character structure of heart chakra. The rigid person. At the developmental period, if we are told to shut down our feelings and performance, we become very rigid. अगेन इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल किड्स के लिए आता है। पेरेंट्स दोनों वर्क करते हैं, वो शाम को रात को बहुत लेट घर में आते हैं, एंड द चाइल्ड इज बबलिंग टू टेल यू समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द स्कूल, हैपेंड विद हिम विद द फ्रेंड्स, एंड व्हेन यू आपके पास बच्चा आता है और बोलता है पापा पापा ये ना स्कूल में ये हो गया या ये वो हो गया, एंड आप वो ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन लेकर आते हो, यू आर वेरी मच टायर्ड, यू हैव टू कुक द फूड, एंड देन यू टेल द चाइल्ड अरे बस यार कुछ मत बोल, तू चुपचाप बैठ जा, अभी मुझे मेरा दिमाग मत खा, आई एम वेरी मच टायर्ड, यू जस्ट गो टू योर रूम एंड स्टडी। स्टडी नहीं करता है, पक 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 करता रहता। अरे बच्चों को तो बोलने को तो दो आप। इट्स लाइक बट स्टार्टिंग से अगर उसको आप बोलते हो कि यू जस्ट कीप क्वाइट, शट अप, आगे जाकर कोई जो मेजर थिंग होगी ना वो भी आपके साथ शेयर नहीं करेगा, एंड देन यू विल फील कि अरे इतनी बड़ी बात हो गई, मुझे दूसरों से पता चलती है, मेरे खुद के बेटे ने मुझे नहीं बताई। बट did you have that bond with your kid? You are always telling your kid to shut up, then he is shut down, and he knows that there is no use telling anything to his parents, so he will search love somewhere else, and maybe he may go in some wrong places also, and then we will blame the child only, but this is our mistake. It is because of how we have behaved with the child is going somewhere else. Encouragement of the softer feelings with positive mirroring helps rigid type to recover. अगर आपको पता है कि बंदा ये रिजिड है, तो
तो उसको एनकरेज करो। कोई भी छोटी से छोटी बात भी वो अगर ठीक से करता है, उसको एनकरेज करो कि हाँ या यू हैव डन इट वेरी नाइसली, अरे ये बहुत अच्छा है, यस करेक्ट, यू कैन डू इट, बहुत अच्छा चल रहा है, एनकरेज करो, तो वो रिजिडनेस से बाहर आने में उसको मदद मिलती है। और दूसरे एक टाइप के होते हैं, बहुत हिस्टेरिक होते हैं। द टेंडेंसी टू एक्सप्रेस इमोशंस हिस्टेरिकली बिकम्स हैबिचुअल, दिस इज बिकॉज दे काव फॉर लव। इतनी सी छोटी सी बात होगी तो इतना बड़ा बवंडर बना देते हैं। कोई भी छोटी सी बात हुई, इतने रोने धोने लगते हैं, ड्रामा चालू ये वो, कि इतना बड़ा मसला रहती है थोड़ी सी छोटी सी बात, इतना हिस्टेरिक करती हैं, बिकॉज दे काव फॉर लव, अटेंशन काव करते हैं। द पर्सन हु डजंट गेट अटेंशन व्हेन द सिचुएशन कम्स, कि उसको पता है कि अगर मैं रोऊंगी या चिल्लाऊंगा चीखूंगा तो लोग मेरी तरफ देखेंगे, तो वो वही करेगा। इट इज़ जस्ट बिकॉज फॉर गेटिंग अटेंशन the person is carving for love, which is the person is not getting. Both of them have closed down their heart chakra rapidly and at will. They long for closeness but feeling inadequate as they fear trust state. वो trust state नहीं रहती है इसमें। अब हार्ट चक्र अगर एक्सेस में, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा फास्ट घूम रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, तो क्या होता है? एक्सेस इन हार्ट चक्र इज नॉट एन एक्सेस ऑफ एक्चुअल लव but an excess use of love for our own needs. This happens when we overcompensate for our wounds. Best example, अरे मुझे टेंशन है, चलो कुछ खा लो, अरे आई एम गोइंग, आई मीन माई बॉयफ्रेंड हैज़ और माई गर्लफ्रेंड हैज़ लेफ्ट मी, चलो ड्रिंक ले लेते हैं। यू आर इन योर ओन वाउंड्स, यू आर ऑलवेज कंपनसेटिंग फॉर दैट, कि मुझे ये नहीं मिल रहा है तो मुझे ये करना है। You go on eating, your weight will increase. You have to come out of the situation. अच्छा ठीक है, हो गया, हो गई, बात खत्म होगी, come out of it. This type is desperately in need of constant assurance and does not allow others freedom. वो आपको continuously पूछेगा, अच्छा ठीक तो है, you are not going to leave me ना, ये ठीक बना है ना, you love me ना, आप मेरे साथ रहोगे ना, मैं अच्छी तरह से कर रही हूँ ना, ये आपको ठीक लग रहा है ना। कंटिन्यूसली उनको, हाँ भाई ये ठीक है, या डूइंग इट करेक्टली, आप कर सकते हो, कम ऑन, कंटिन्यूस रीअश्योरेंस चाहिए। जैसे बच्चे बहुत छोटे होते हैं तभी उनको ये कंटिन्यूस रीअश्योरेंस चाहिए कि आप बच्चे के ऊपर हाथ भी रख दिया ना तो बच्चा रोना बंद कर देता है। इनफैक्ट द चाइल्ड फ्रॉम जस्ट न्यू बॉर्न बेबी टिल 1 or 2 years, द चाइल्ड वॉन्ट्स योर रीअश्योरेंस, आपका साथ चाहिए होता है कि यस आई एम देयर फॉर यू। वैसे ही बड़ों में भी होता है व्हेन द हार्ट चक्रा इज ब्लॉक्ड। जैसे मैंने कहा आपको एग्जांपल, एक्सेस फीडिंग जो हो गया, पेरेंट्स जो देते हैं बच्चों के लिए, एक्सेस डिमांड एंड बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं वो लोग, किसी भी चीज़ के लिए पॉजेसिव हो जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड। लव बिकम्स एन ओबेशन इन विच द लव्ड वन इज मोर ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ आवर सेल्फ देन अ सेपरेट ह्यूमन बीइंग। अब डेफिशिएंसी हुई हार्ट चक्र में। डेफिशिएंट हार्ट चक्र रिस्पॉन्स टू वाउंड्स ऑफ लव बाय विड्रॉइंग, अपने शेल में चला जाता है, विड्रॉ हो जाता है। हैविंग बीन हर्ट बिफोर, लव बिकम्स कंडीशनल, तो बाद में सोचता है कि अरे नहीं, ये तो मेरे फ़ायदे के लिए तो नहीं कर रही है, नहीं अगर तू ये करेगा तो ही मैं तुझे प्यार करूँगी। एग्जाम्पल अगेन कि नो, इफ़ यू वॉन्ट माई लव यू शुड डू दिस, दिस इज़ नॉट करेक्ट, लव इज़ नॉट कंडीशनल, इट शुडंट बी कंडीशनल। The deficient people are usually waiting for a knight in a shining armor or a fairy godmother to come and play rescue. वो किसी के लिए तो रुके होते हैं कि नहीं कोई तो आएगा और मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल देगा। अब हीलिंग कैसे करनी है? सेल्फ एक्सेप्टेंस सेट्स द स्टेज फॉर आवर सोशल आइडेंटिटी। खुद को पहले पहचानो, खुद के अंदर झांको। डोंट होल्ड बैक योर फीलिंग्स। व्हेन वी होल्ड बैक आवर फीलिंग्स वी होल्ड आवर ब्रेथ, दिस लीड्स टू रिस्ट्रिक्टिंग इन वाइटल नरिशमेंट टू आवर सेल्फ। जो भी फीलिंग्स है उसको व्यक्त होने दो, कम आउट विथ योर फीलिंग्स। डीपनिंग द ब्रेथ शैलोज अलाउज टू सरफेस द फीलिंग्स। डीप ब्रीदिंग करो। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो आपकी इमोशंस ऊपर आने में मदद आती है। ग्रीफ, this is nearly based on loss. It is important to reclaim that part of ourselves.
We grieve because a scared essence within ourselves has been awakened and then compromised. As we shed grief, we again will be able to love. ग्रीफ बहुत जब ज़्यादा हो जाती है ना, जब हमारा पार्टनर गुजर जाता है, तो जो ग्रीफ होती है ना, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो सालों तक ग्रीफ वही चलती रहती है। आप दूसरों की तरफ देखते भी नहीं हो, आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप देखते भी नहीं हो उनकी तरफ। यू आर ओनली इन योर ग्रीफ दैट आई हैव लॉस्ट माई पार्टनर, विच इज़ नॉट करेक्ट। यू हैव टू कम आउट ऑफ इट आफ्टर सम टाइम। आप ये कैसे कर सकते हो? फॉरगिवनेस। Forgiveness is the best meditation by which you can come out of all these things. When our heart is injured, we protect it from the one we believe has caused it harm. We blame him or her for the pain, forgetting the part that we may have played. Forgiveness is the best medicine to come out of this situation. The first thing of forgiveness is that you start forgiving your parents. एक फॉरगिवनेस एक्सरसाइज है, वो ऐसी है, से योर नेम दैट अगर मुझे मेरी माँ को फॉरगिव करना है, आई मीन शी इज़ अलाइव और डेड डजेंट मैटर, यू स्टार्ट विथ योर मदर फर्स्ट. सो से इफ आई वॉन्ट टू फॉरगिव माई मदर, आई विल से दैट आई स्वाति फॉरगिव वंदना, दैट्स माई मदर्स नेम, प्लीज़ फॉरगिव एंड रिलीज मी. मेरे जो बुरे कर्म उनके साथ हुए होंगे पहले या अभी होते होंगे, उससे मुझे मुक्ति चाहिए. समटाइम्स वी मस्ट हैव चीटेड ऑन हर, झूठ बोला होगा, उनका दिल दुखाया होगा बहुत बार, अनड्यू एडवांटेज लिया होगा उनका, टेकन फॉर ग्रांटेड होगा. तो ये सारी चीज़ें, आई डोंट नो व्हाट आई हैव डन, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया है, मैंने उनको कैसे हर्ट किया है, पर मुझे आई वॉन्ट टू फॉरगिव हर एंड आई वॉन्ट हर टू फॉरगिव मी, सो दैट आई विल बी रिलीज्ड फ्रॉम दिस. तो ये रिलीज आप फॉरगिवनेस एक्सरसाइज जब करते हो तो आप बहुत अच्छा फील होता है आपको. तो स्टार्ट विथ योर मदर, देन योर फादर, देन योर स्पाउस, किड्स, योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, वेयर यू वर्क, एंड देन ऑल टुगेदर. इवन द नेचर, कुछ कैलामिटीज़ है, कुछ आपके साथ इंसिडेंट हो गया है, यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव, स्टार्ट द फॉरगिविंग एक्सरसाइज. डू इट फॉर 15 minutes डेली and see the difference it causes in your body as well as in your mind.